پاک فوج دفاع وطن کے لیے ہمہ وقت تیار۔ افغان سرحد پر باجوڑ میں پاکستانی فوجی چیک پوسٹ پر سرحد پار سے دہشت گردوں کی فائرنگ۔ پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی، 2 سے 3 دہشت گرد ہلاک، 4 زخمی۔ فائرنگ کے تبادلے میں 2 فوجی جوان شہید۔ ISPR۔ کابل ایئرپورٹ کے قریب 2 واقعات میں 2 افراد ہلاک، راکٹ حملہ، 1 بچہ جاں بحق۔ راکٹ ایئرپورٹ کے قریب ایک گھر پر گرا۔ دوسرے حملے میں امریکی ڈرون طیارے نے ایک گاڑی کو نشانہ بنایا، مبینہ خودکش حملہ آور ہلاک۔ PTV نیوز کی ٹیم افغانستان کی بدلتی صورتحال پر رپورٹنگ کے لیے کابل میں موجود۔ امریکی وزیر خارجہ انتھونی بلنکن کا کہنا ہے کہ افغانستان سے اپنے شہریوں کا انخلاء وقت سے پہلے مکمل کر لیں گے۔ بھارت افغانستان کے معاملات میں مداخلت سے باز رہے، غیر ملکی افواج کے انخلاء کے بعد داعش کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ایسی حکومت ہونی چاہیے جو بین الاقوامی برادری کے لیے قابل قبول ہو۔ خواتین کو نہ صرف حقوق دیں گے بلکہ ان کے تحفظ بھی کریں گے۔ حزب اسلامی کے سربراہ گلبدین حکمت یار کی کابل میں نیوز کانفرنس۔ خواتین اور شہریوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ضابطۂ اخلاق تشکیل دے رہے ہیں۔ نئے نظام کا نفاذ، خواتین کی نقل و حرکت پر کسی قسم کا قدغن نہیں۔ ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد کی پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے گفتگو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا فورٹ منرو میں متعدد منصوبوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد۔ سیاحت کے فروغ، اسکولوں کی اپ گریڈیشن اور واٹر سپلائی اسکیم سمیت 4 نئے منصوبے شامل۔ فورٹ منرو میں ریسکیو 1122 کا ایمرجنسی اسٹیشن بنانے کا اعلان۔ حکومت پسماندہ اور وسائل سے محروم علاقوں کی ترقی پر کام کر رہی ہے۔ سردار عثمان بزدار۔ PDM بے وقت کی راگنی الاپ رہی ہے۔ ماضی کی طرح اب بھی ناکامی ان کا مقدر ہوگی۔ ان کے جلسے کورونا کے پھیلاؤ کا باعث بنے گے۔ وزیراعظم عمران خان کی قیادت میں ملکی ترقی کا سفر جاری رہے گا۔ اپوزیشن کے شور شرابے سے رک نہیں سکتا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی۔ آج PDM کا دوبارہ جلسہ ہے جس کا مقصد مجھے تو لگتا ہے پیپلز پارٹی کے خلاف مہم ہے، کیونکہ سندھ میں ہو رہا ہے۔ ہمارے خلاف ہوتا تو پنجاب میں کرتے، KP میں کرتے، تو یہ جو سندھ میں کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی سے لڑائی بھی ہے۔ یہ تمام لوگ جو ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے صرف خان سے NRO لینا ہے۔ حزب اختلاف کی تمام جماعتیں آپس میں دست و گریباں۔ اپوزیشن قائدین کو غریب عوام سے کوئی دلچسپی نہیں، ان کا مال اور اولادیں بیرون ملک ہیں۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مانگے تانگے کی پارٹی رہ گئی ہیں، ان کو کسی صورت NRO نہیں ملے گا۔ معاون خصوصی شہباز کی نیوز کانفرنس۔ بھارتی جیلوں میں نظر بند حریت رہنماؤں اور کارکنوں کی بگڑتی ہوئی صحت، کل جماعتی حریت کانفرنس کا اظہار تشویش۔ نظر بندوں کی وادی سے باہر کی جیلوں میں منتقلی کی مذمت۔ شہداء، غازیوں اور ان سے جڑے تمام رشتوں کو سلام۔ شہیدوں کے اہل خانہ کے عزم اور قربانیوں کو خراج تحسین۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے یوم دفاع شہداء کے حوالے سے نئی ویڈیو جاری کر دی۔ انسداد کرونا کا حکومتی عزم، SOPs کا دائرہ کار 27 شہروں تک بڑھانے کا فیصلہ۔ تجارتی سرگرمیاں رات 8 بجے تک محدود۔ مارکیٹس ہفتے میں 2 دن بند۔ ریسٹورنٹس میں انڈور ڈائننگ اور انڈور شادیوں کی تقریبات پر مکمل پابندی۔
300 मेहमानों के साथ आउटडोर शादी की तकरीबात की इजाज़त होगी। मुल्क भर में तालीमी इदारे 50% हाजिरी के साथ खुलेंगे। NCOC के अहम फैसले। मुल्क में कोरोना से मजीद 69 अफराद जाम भग, 3,909 नए केसेस रिपोर्ट। अमवात की मजमूई तादाद 25,589 हो गई। मस्बत केसेस की शरह 6.2% रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में स्क्वाश चैंपियनशिप सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। तैयब असलम, हमजा शरीफ, नासिर इकबाल और इसरार अहमद की लास्ट फोर में रसाई। सेमीफाइनल्स कल जबकि फाइनल मंगल को खेला जाएगा। और टोक्यो पैरालंपिक मुकाबले जारी। मर्दों और खवातीन की 100 मीटर दौड़ में बरतानिया के एथलीट्स तिलाई तमगा जीतने में कामयाब। इथोपिया ने तारीख का पहला पैरालंपिक गोल्ड मेडल जीत लिया। खवातीन की 1500 मीटर दौड़ डाइजेस्ट गिजाहिन की पहली पोजीशन। आज़रबाईजान के निजोडो में 3 तिलाई तमगे जीते। मेंस टेबल टेनिस सिंगल्स में गोल्ड मेडल अमेरिका के सीडन फील्ड के नाम रहा। बोनी ऑगस्टन ने पावर लिफ्टिंग में पैरालंपिक रिकॉर्ड कायम करके मलेशिया को टोक्यो गेम्स में सोने का पहला तमगा दिलाया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं सबा रियाज। और खेल की खबरें लिए मैं हूं आपके साथ समी इकबाल। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, इन खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। जिंदगी के रिश्ते एहसास से बनते हैं। इन्हीं रिश्तों की आबियारी के लिए शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद, जहां पाकिस्तान का कामयाब तरीन ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेंटर आपके प्यारों की जिंदगी में उम्मीद और सेहत के लिए पुरअज़्म एक ही छत तले पाकिस्तान की सबसे बड़ी और मुख्तलिफ तिब्बी शोबों के माहिरीन की एक्सपीरियंस टीम लिवर, किडनी, बोन मैरो और कॉर्निया ट्रांसप्लांट को कामयाबी के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक यकीनी बनाती है। मरीज और डोनर्स की मुकम्मल केयर और तहफ़्फ़ुज़। इट्स ऑल हियर इन पाकिस्तान। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद, उम्मीद और जिंदगी के सफर में आपके हमकदम। खबरनामे के आगाज़ में आपको आगाह करें, पाक अफगान सरहद पर बाजोड़ के इलाके में पाकिस्तानी फौजी चेक पोस्ट पर सरहद पार से दहशत गर्दों की फायरिंग। पाक फौज ने मुअस्सर और मुंह तोड़ जवाब दिया। इतलात के मुताबिक पाक फौज की फायरिंग से 2 से 3 दहशतगर्द मारे गए जबकि 3 से 4 जख्मी हो गए। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 2 जवान शहीद हुए। 28 साला सिपाही जमाल शहीद का ताल्लुक मर्दान से जबकि 21 साला सिपाही अयाज शहीद का ताल्लुक चित्राल से है। पाकिस्तान ने दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल होने की पुरजोर मजम्मत की है। पाकिस्तान तवक्को रखता है कि अफगानिस्तान में मौजूद और मुस्तकबिल की क़यादत पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाइयों के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देगी। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि काबुल में अमरीकी ड्रोन तैयारे ने एक गाड़ी को निशाना बनाया है जिसमें मुबैना तौर पर खुदकश हमला आवर हलाक हो गया। तालिबान तर्जुमान ने अमरीकी हुकाम के हवाले से बताया कि हमला आवर की गाड़ी में बारूद मौजूद था और वो काबुल एयरपोर्ट को निशाना बनाना चाहता था, लेकिन उसे मंजिल तक पहुंचने से पहले ही ड्रोन हमले में हलाक कर दिया गया।
इससे कबल काबुल एयरपोर्ट के करीब एक मकान पर रॉकेट हमला किया गया जिसमें एक बच्चा जाम बहक हो गया। सूरत हाल की संगीनी के पेश नज़र अमरीकी महकमा खारजा ने अपने शहरियों से कहा है कि वो हवाई अड्डे से दूर चले जाएं। सदर जो बाइडन ने आज काबुल में मजीद हमलों के खतरे का इजहार किया था। काबुल एयरपोर्ट पर 3 रोज़ कबल धमाकों में 13 अमरीकी फौजियों समेत 175 अफराद हलाक हुए थे, जिसके बाद सदर जो बाइडन ने अफगानिस्तान में दाइश खुरासान के ठिकानों पर मजीद हमलों का इंदिया दिया था और कहा था कि काबुल धमाकों में मुलव्विस अफराद की तलाश जारी रखेंगे। अफगानिस्तान से गैर मुल्की फौजों के इनखला की डेडलाइन में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, जबकि अमरीका के 300 शहरी अभी अफगानिस्तान में मौजूद हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने ABC न्यूज़ को बताया कि अफगानिस्तान से अपने शहरियों का इनखला वक्त से पहले मुकम्मल कर लेंगे। अफगानिस्तान में हिज़्ब इस्लामी के सरबराह गुलबदीन हिकमतजार ने भारत को मुतनब्बे किया है कि वो अफगानिस्तान के मामलात में मुदाखलत से बाज रहे। काबुल में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अफगान मुजाहिदीन के साबिक कमांडर और साबिक वज़ीर आज़म गुलबदीन हिकमतयार ने कहा कि माजी में जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर चढ़ाई की तो उस वक्त भी भारत ने अफगान अवाम के खिलाफ सोवियत यूनियन का साथ दिया था। हम तवक्को करते हैं कि भारत अब होश के नाखून लेगा। हिकमतयार ने कहा कि एक ऐसी वीडियो भी सामने आई है जिसमें साबिक इंडियन फौजी अफसर खुलेआम अहमद मसूद के जंगजू गिरोह को मुसल्लह करने की बातें कर रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि भारत ऐसी हरकतों से इज्तनाब करेगा। नेटो के इतने फौजी अफगानिस्तान में 20 साल रहे थे, आज उनका हशर देख लें। भारत की तो हैसियत ही कुछ नहीं। पंजशेर में तालिबान मुखालिफ जंगजुओं का हवाला देते हुए गुलबदीन हिकमतयार ने कहा कि चंद अमरीकी कानून साज अब भी उनकी हिमायत कर रहे हैं, जिससे जाहिर होता है कि शायद अमरीका अफगानिस्तान से जाना नहीं चाहता और उसकी ख्वाहिश है कि किसी तरह से जंग को तूल दे। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में ऐसी हुकूमत होनी चाहिए जो बैनुल अक़वामी बरादरी को कबूल हो। हमारी ख्वाहिश है कि अवाम अपनी तकदीर का फैसला खुद करें। हिज़्ब इस्लामी के सरबराह ने इस उम्मीद का इजहार किया कि गैर मुल्की अफवाज के इनखला के बाद दाइश का खात्मा हो जाएगा। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि जिम्मेदार इदारे ख़वातीन और शहरियों का हुकूक तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के ज़ाब्ता अख़लाक़ बनाने में मसरूफ़ हैं। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इस ज़मन में तमाम फैसले उस वक्त किए जाएंगे जब नई हुकूमत कायम होगी। इस वक्त अफवाहों को पसपुष्ट डालें। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि बहनों और बेटियों के हवाले से काबिल कबूल और बावकार पॉलिसी देंगे। ख़वातीन के लिए सफरी और कारोबारी ज़वाबित अभी तय नहीं हुए। क़यादत इस ज़मन में तमाम पहलुओं का ख्याल रखेगी। उन्होंने कहा कि नए निज़ाम के क़याम से कबल ख़वातीन की नक़्ल व हरकत पर किसी किस्म की कदगन नहीं। तालिबान ने कहा है कि उनके मुजाहिदीन कई अतराफ से वादी पंजशेर में दाखिल हो गए हैं। अफगान ज़राए इब्लाग के मुताबिक तालिबान के सकाफ़ती कमीशन के रुकन इनामुल्लाह समनगानी ने कहा कि तालिबान की पेशकदमी करते हुए किसी मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के दरवाजे अब भी खुले हैं। हफ्ते के रोज़ अहमद मसूद के वफ़द ने काबुल में तालिबान के वफ़द से मुलाकात की। दूसरी जानिब पंजशेर मज़ाहमती फ्रंट के वफ़द के सरबराह मोहम्मद जाहिद अलमास ने कहा है कि पंजशेर में कोई लड़ाई नहीं हुई और ना ही कोई सूबे में दाखिल हुआ है। अफगान तालिबान के अमीर मुल्ला हिब्तुल्लाह अख्वंज़ादा के हुक्म पर सूबा लकमान के साबिक गवर्नर, पुलिस और इंटेलिजेंस सरबराहान और कौंसल चेयरमैन को रिहा कर दिया गया है। तालिबान के सूबाई पुलिस चीफ मौलवी फैसल ने रिहा होने वाले अफराद को बाहिफाजत घरों को जाने की इजाज़त दी। तर्जुमान तालिबान ने कहा कि रिहाई मुफाहमती अमल के तहत अमल में आई है। हम आम माफ़ी के ऐलान पर कायम हैं। नाज़रीन, पाक अफगान बॉर्डर चमन बाब दोस्ती आज भी कानूनी दस्तावेजात रखने वालों के लिए खुला रहा और SOPs की पासदारी के साथ तिजारती सरगर्मियों का सिलसिला भी जारी रहा। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अफगान मरीजों को भी पाकिस्तान आने की इजाज़त दी गई। बाब दोस्ती पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं। मुतल्लिका इदारे अफगान महाजरीन के दाखिले को हर मुमकिन तौर पर रोक रहे हैं। जिला चमन और कला अब्दुल्ला में मुख्तलिफ सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर भी गाड़ियों की चेकिंग करके अफगान महाजरीन को रोका जा रहा है। 15 अगस्त को तालिबान की जानिब से अफगानिस्तान पर कंट्रोल हासिल करने के बाद से भारतीय मीडिया मुसलसल प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ़ है। भारतीय मीडिया जो झूठी खबरों और प्रोपेगेंडे के हवाले से दुनिया में मशहूर है, हक़ाइक़ को भी तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं अमजद अली। भारतीय मीडिया गुज़िश्ता 20 साल से तालिबान के खिलाफ गलत और मनफी रिपोर्टिंग करता रहा है, लेकिन अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद इसमें तेजी आ गई है। तालिबान की तरफ से खवातीन, आज़ादी इजहार राय और हुकूमती मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के ऐलान के बावजूद भारत मौसीकी पर पाबंदी, खवातीन के हकूक और तालीम के हवाले से मनफी प्रोपेगेंडे में मसरूफ़ है। एक तरफ भारत को अफगानिस्तान में अपनी की हुई फंडिंग डूबती हुई नजर आ रही है,
तो दूसरी जानिब तालिबान हुकूमत की सूरत में भारत अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। ऐसी सूरत हाल में हवास बाख्ता भारतीय मीडिया, जो पहले ही अपनी साख खो चुका है, हस्बे रिवायत हुकूमती मकासद के हसूल के लिए गलत रिपोर्टिंग कर रहा है। दूसरी तरफ भारत की साबिक अफगान हुकूमत के साथ दोस्ती की कलई भी खुलकर सामने आ गई है। साबिक अफगान रुकन पार्लियामेंट रंगीना कारकर को दिल्ली एयरपोर्ट से उस वक्त वापस भेज दिया गया जब वो पनाह लेने के लिए भारत पहुंची थी। इंसानी हकूक तो दूर की बात, भारत अफगानिस्तान के साथ अपनी पिछली नाम नेहाद दोस्ती के दावे को भी भूल गया। रंगीना कारगर ने BBC से बात करते हुए कहा कि उन्हें भारत से इस किस्म के रवैये की तवक्को नहीं थी। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद भारत ने अफगान शहरियों के लिए वीज़े की सहूलत का ऐलान किया, लेकिन ये सहूलत सिर्फ ऐलान तक ही महदूद रही। काबुल में रिहाइश पजीर 19 साला तालिबा ने BBC को बताया कि उन्होंने तालीमी वीज़े के लिए भारतीय सफारत खाने को दरख्वास्त दी थी, लेकिन उन्हें भी वीज़ा नहीं मिला। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और दीगर भारतीय क़यादत की जानिब से तालिबान के बारे में मनफी बयानात से भारत और तालिबान के ताल्लुकात पहले ही कशीदा हैं। ऐसे हालात में भारतीय मीडिया जलती पर तेल डालने का काम कर रहा है। अमजद अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी कराची में मरहूम मुमताज़ अली भुट्टो के घर गए और उनकी वफात पर अहले खाना से ताज़ियत की। सदर ममलिकत ने सोगवारान से इज़हार हमदर्दी और मरहूम की मग़फ़िरत के लिए दुआ की। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि मरहूम मुमताज़ अली भुट्टो सिंध की सियासत में अहम किरदार के हामिल थे। सदर ममलिकत ने मरहूम के लिए फातिहा खानी और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर ने कहा है कि पाकिस्तान हमेशा से खित्ते में अमन का ख़्वाह रहा है। दुनिया ने पाकिस्तान के अमन के लिए कोशिशें का एतराफ़ किया है। सवाबी में तरक्याती मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए असद कैसर ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन के क़याम के लिए कोशिशें जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पसमानदा इलाकों की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। पहली बार बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और ख़ास तौर पर नए ज़म अजला की तरक्की के लिए मुतअद्दिद मंसूबे शुरू किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये पहली हुकूमत है जिसने अपनी कारकर्दगी आवाम के सामने पेश की। आवाम को सेहत और तालीम की मयारी सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि हुकूमत पसमानदा और वसाइल से महरूम इलाकों की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। इस हवाले से तफसीलात से आपको आगाह करेंगे एक ब्रेक के बाद। ख्वाब, अज़्म, इत्तेहाद, जुस्तजू, कामयाबी, लगन, जिंदगी, शर्फ, इन सब से मिला हमें हमारा पाकिस्तान। और अब मिलकर उठाएंगे हम अपना हर कदम वतन के नाम। अपने वतन पर फख्र करने के लिए हमारे पास कितना कुछ है, जैसे शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद, जहां पाकिस्तान के लीडिंग और कामयाब तरीन लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर में पिछले 10 सालों में 1000 से ज्यादा लिवर ट्रांसप्लांट्स कामयाबी के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक किए जा चुके हैं। एक ही छत तले पाकिस्तान की सबसे बड़ी और मुख्तलिफ तिब्बी शोबों के माहिरीन की एक्सपीरियंस टीम मरीज और डोनर की मुकम्मल केयर और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाती है। अब लिवर ट्रांसप्लांट के लिए किसी गैर मुल्क में क्यों जाए? इट्स ऑल हियर इन पाकिस्तान। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद, उम्मीद और जिंदगी के सफर में आपके हमकदम। आपको बताएं कि पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि हुकूमत पसमानदा और वसाइल से महरूम इलाकों की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। बुडेरा गाजी खान के सियाती मकाम फोर्ट मनरो में 80 करोड़ रुपए के 8 मनसूबों के इफ्तिताह और संगे बुनियाद के मौके पर माहिदीन से खिताब कर रहे थे। वज़ीर आला ने खित्ते की तामीर और तरक्की के लिए 5 अरब 70 करोड़ रुपए के फंड्स का ऐलान भी किया है। तफसील इमदाद हुसैन से जानते हैं। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि फोर्ट मनरो जैसे वसाइल से महरूम सियाती मकाम को तरक्की देने से सियाहों को पीने के साफ पानी, सफाई,
सिहत व तालीम की बेहतरीन सहूलतें मैसर आएंगी। उन्होंने कहा कि कोस सलेमान रेंज में छोटे बड़े मुतअद्दिद डैम्स पर तमीराती काम जारी है। पहाड़ी सिलसिले में राब्ता सड़कों की तमीर से खित्ते में तरक्की के नए दौर का आगाज होगा। इससे पहले वजीर आला ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के हमरा पार्क्स की बहाली, शमसी लाइट की तनसीब, सियाती मकाम की अपग्रेडेशन और अनेक्सी बहाली के मनसूबों का इफ्तिताह किया। सरदार उस्मान बोजदार ने वाटर सप्लाई स्कीम की बहाली, रेस्क्यू स्टेशन और फोर्ट मनरू हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी की सतह पर अपग्रेडेशन मनसूबों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वजीर आला को फोर्ट मनरू कैडेट कॉलेज और पब्लिक स्कूल के क्याम बारे मनसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। इमदाद हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, फोर्ट मनरू, डीजी खां। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पीडीएम बेवक्त की रागनी अलाप रही है। इनके बेमौसमी जलसों से हुकूमत को कोई सियासी तशवीश नहीं, तहम खतरा है कि ये जलसे कोरोना वबा के फैलाव का बायस बनेंगे। मुल्तान में अपने इंतखाबी हल्के N156 में मुख्तलिफ तकरीबात से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि गुज़श्ता 3 साल में पीडीएम की तमाम तहरीकें नाकाम हुई। पीडीएम अब कोई नई चाल चलना चाहती है तो अपना शौक पूरा करे। माजी की तरह अब भी नाकामी इनका मुकद्दर होगी। उन्होंने कहा कि पीडीएम अमलन ख़त्म हो चुकी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की क़ियादत में मुल्क की तरक्की का सफ़र जारी है जो अपोजिशन के शोर शराबे से रुक नहीं सकता। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मेरा 4 मुल्की दौरा कामयाब रहा। इस दौरे में क़ियादत से होने वाली मुलाकातों में अफ़गानिस्तान के हवाले से उनका नुक्ता नज़र जानने का मौका मिला। पाकिस्तान खित्ते में अमन की ख्वाहिश लेकर आगे बढ़ रहा है। अफ़गानिस्तान में क़याम अमन बहुत ज़रूरी है क्योंकि अफ़गानिस्तान के अमन से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते का अमन वाबस्ता है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में ऐसा सियासी तस्वीर चाहता है जिसमें तमाम शराकतदार यकजा हों और खित्ते में पायदार और मुस्तकिल अमन कायम हो। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि हिज़्ब इख्तिलाफ़ की तमाम जमातें आपस में दस्तो गिरेबा हैं। पीडीएम को पीपल्स पार्टी ने बनाया था, हम अब वो खुद इसका हिस्सा नहीं। फैसलाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए शहबाज गिल ने कहा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून फजलुर रहमान की सी टीम्स बन गई हैं। मुस्लिम लीग नून जीटी रोड जबकि पीपल्स पार्टी अंदरूनी सिंध तक महदूद हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन कायदीन को गरीब आवाम से कोई दिलचस्पी नहीं, इनका माल और औलाद बैरून मुल्क हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ वज़ीर आज़म के गरीबों के लिए हर इक़दाम का मजाक उड़ाती है। अपोजिशन का एक ही मकसद है कि इमरान खान इनको NRO दे दें। अब जवाब देना पड़ेगा इन्हें कि ये जो इतनी नाकामियां हुई हैं इसके बाद इनका अगला लाहे अमल क्या है। कोई ऐसा काम करें को अपोजिशन करें। हम चाहते हैं, जमहूरियत का हुस्न होता है, एक ताकतवर अपोजिशन जो है वो जमहूरियत का हुस्न है। हम खुदा गवाह है एक ताकतवर अपोजिशन चाहते हैं। ये तमाम लोग जो हैं ये वो हैं जिन्होंने सिर्फ खान से NRO लेना है। खान ने आपसे पैसा वापस निकलवाना है। शहबाज गिल ने कहा कि मरियम नवाज शरीफ आजकल सख्ते में हैं। मुस्लिम लीग नून को आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन सारी उम्र याद रहेगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से हर हाल में पैसा वापस लेना है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी ने कहा कि मौजूदा हुकूमत अवाम की फलाह के लिए मुतअद्दिद इक़दामात कर रही है। दुनिया भर के इदारे पाकिस्तान की सत्ताइश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अपोजिशन मुस्बत किरदार अदा करे। शहबाज गिल ने कहा कि अखबारात और चैनल्स को बेतहाशा इश्तिहारात मिल रहे हैं। अखबार और चैनल मालिकान मीडिया वर्कर्स को तनख्वाह की बरवक्त अदायगी यकीनी बनाएं। वज़ीर ममलकत इत्तलात और नशरियात फारूक हबीब ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान वो वाहिद लीडर हैं जो अवामी खिदमत के एजेंडे पर अमल पैरा हैं। पीपल्स पार्टी समेत बारियां लगाने वाली सियासी जमातों ने करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, जाली अकाउंट्स के अलावा कुछ नहीं किया। अगर उन्हें आवाम का इतना ही ख्याल होता तो ये अपने अदवार में करप्शन की बजाय अवामी खिदमत पर तवज्जो मरकूज करते। PTI की वाहिद हुकूमत है जिसने हर साल सूबों को NFC के अलावा भी मसावी मौक़े फराहम किए हैं। सिंध की हुकूमत की करप्शन की लाजवाल दास्तानों की वजह से कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, पानी फराहमी के K4 मनसूबे पर विफाक खुद काम कर रहा है। इतवार को बिलावल जरदारी के बयान पर रद्द-ए-अमल में वज़ीर ममलकत फारूक हबीब ने कहा कि बिलावल साहब, आज तक तो आप ये नहीं बता सके कि NFC की मद में विफाक की जानिब से दिए गए 1900 अरब कहाँ इस्तेमाल हुए। झूठ, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, जाली अकाउंट्स पीपल्स पार्टी की पहचान बन चुकी है। पर्ची चेयरमैन साहब, सेलेक्टेड की तारीफ पर आप पूरा उतरते हैं। सब जानते हैं कि एक वसीयत पर आप इस ओहदे पर हैं। उन्होंने कहा कि इंसाफ, कानून की बालादस्ती और अवामी खिदमत की बुनियाद पर 2023 के इलेक्शन में भी PTI क्लीन स्वीप करेगी। बिलावल समेत धांधली ज़दा और चोर रास्ते से इक़्तिदार में आने वाले ऐसे ही मुंह देखते रह जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने जो वादे किए वो आवाम से पूरे किए।
हम दोबारा इक़्तिदार में आकर आवाम को रिलीफ फराहम करेंगे। खैरपुर में वर्कर से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि पीपल्स पार्टी दोबारा इक़्तिदार में आकर आवाम की खिदमत करेगी और रोटी कपड़ा और मकान आवाम की दहलीज तक पहुँचाएगी। बिलावल भुट्टो का कहना था कि पीपल्स पार्टी विफाक की जमात है और हम पूरे पाकिस्तान के आवाम की खिदमत करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख और फिरदौस शमीम नकवी ने पीडीएम के जलसों पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि पीडीएम की सियासत बेसमत है, अवाम इनको रद्द कर चुके हैं। कराची में मीडिया से बात करते हुए हलीम आदिल शेख ने कहा कि खवातीन का सियासी जदोजहद में किरदार है, लेकिन पीडीएम के जलसे में खवातीन की अदम शिरकत का फैसला मौलाना फजल रहमान का दोहरा म्यार है। मदारिस के बच्चों को ज़बरदस्ती दल से मिलाना कहाँ की अखलाकियात हैं। मौलाना फजल रहमान को चाहिए कि इन बच्चों पर रहम करें। वालिदैन ने मदरसों में तालीम के लिए भेजे हैं, जलसे में शिरकत के लिए नहीं। फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि विफाक और पंजाब में हुकूमत ने अपनी कारकर्दगी पेश की, सिंध हुकूमत भी अपने वादे के मुताबिक कारकर्दगी पेश करे। सिंध के लोगों को पानी नहीं मिलता, 45 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। कराची में आवाम को ट्रांसपोर्ट की सहूलत तक हासिल नहीं। विफाक ने कराची समेत सिंध भर में तरक्याती मनसूबे शुरू किए। तमाम सूबों में वज़ीर आज़म इमरान खान ने सेहत कार्ड्स दिए। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत सेहत कार्ड्स नहीं देना चाहती। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने यौम दिफा शोहदा के हवाले से नई वीडियो जारी कर दी है। वीडियो में शहीदों के अहले खाना के अज़्म और कुर्बानियों को खिराज तहसीन और शोहदा, गाजियों और उनसे जुड़े तमाम रिश्तों को सलाम पेश किया गया है। अस्सलामुअलैकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। देखो तो भला कौन आया आज हमें मिलने। मरियम आंटी कैसी हो मेरा बच्चा, ठीक हो? बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज, आप बड़ी देर बाद पाकिस्तान आए हैं। और तुम कितनी स्मार्ट लग रही हो। ये बताएं, अपनी अकलौती बेटी को एयरफोर्स भेजने का ख्याल कैसे आया? ख्याल रखने वालों को देखकर। क्या मतलब? पता है मरियम, अरशद के शहीद हो जाने के बाद मुझे ऐसे लगा कि मैं तन्हा और बेसहारा हो जाऊंगी, लेकिन इनका पूरा स्क्वाड्रन, इनके कोर्स मेट्स, बल्कि पूरी एयर फोर्स ने मुझे कमज़ोर पड़ने नहीं दिया। इनके जाने के बाद भी पूरी एयर फोर्स ने मुझे इतना मान दिया तो मेरे दिल में ख्याल आया कि अपनी बेटी की सूरत में एयरफोर्स के साथ एक रिश्ता और जोड़ा जाए। आई एम श्योर अरशद भाई को तुम पर बहुत फख्र होगा। और मुझ पे? तुम पर भी हमें बहुत फख्र है। अज़्म हिम्मत की सुनहरी दास्तान। मादरे वतन पर मर मिटने वाले बेटे सिपाही मकबूल हुसैन को बिछड़े 3 बरस बीत गए। भारत ने तमाम मुसलमा बैनुल-अक़वामी कवानीन को पामाल करते हुए सिपाही मकबूल हुसैन को न सिर्फ 40 साल तक बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया, बल्कि असली रिवायात के खिलाफ उन्हें जंगी कैदी के दर्जे से महरूम रखा। सिपाही मकबूल हुसैन सितारे जुरत की दास्तान शुजात आसिम रिजवान की रिपोर्ट में देखिए। आर्मी नंबर 335139 सिपाही मकबूल हुसैन ने सितंबर 1960 में आजाद कश्मीर रेजिमेंट में अस्करी खिदमत का आगाज किया। 5 साल बाद 1965 में मकबूजा कश्मीर में ताकत पकड़ती हुर्रियत पसंद कश्मीरियों की तहरीक आजादी से बदहवास होकर असली दुश्मन भारत ने बैनुल-अक़वामी सरहद पार करने की नापाक जसारत की।
तोरखम से बहिरा अरब की तूफानी मौजों तक मुसल्लह अफवाज के बहादुर जवानों के शाना बशाना पूरी पाकिस्तानी कौम मादरे वतन के दिफा के मुकद्दस फरीजे को निभाने के लिए सीसा पिलाई दीवार बन गई। इसी जंग में सिपाही मकबूल हुसैन अपनी बटालियन के साथ कश्मीर के महाज पर दुश्मन के सामने सीना सफर थे। सिपाही मकबूल हुसैन और उनके साथियों ने अपनी जिम्मेदारी के इलाके में दुश्मन को नाकों चने चबवाए। सिपाही मकबूल हुसैन एक कार्रवाई के दौरान दुश्मन के साथ नबर्द आजमा थे कि जख्मी हालत में दुश्मन फौज ने उन्हें कैदी बना लिया। इस बाहिम्मत, बुलंद हौसला और बहादुर सिपाही ने 40 साल तक दुश्मन की कैद में सऊदतें बर्दाश्त की। उन्हें मुसल्लमा बैनुल-अक़वामी कवानीन के खिलाफ जंगी कैदी का दर्जा भी न दिया गया। उनकी जुबान काट दी गई, तहम पाया इस्तकलाल में लग़ज़िश न आई। 40 साल बाद धरती के सपूत को 2005 में वाघा के रास्ते दूसरे सिविल कैदियों के साथ वतन की सरजमीन पर कदम रखना नसीब हुआ। 1965 की जंग के बाद लापता करार दिया जाने वाला ये अजीम सिपाही 2009 में मुल्क के तीसरे बड़े अस्करी एजाज सितारे जुर्रत का हकदार ठहरा। दुश्मन की कैद में बदतरीन तशद्दुद का शिकार होने वाले इस सिपाही को अपनी शनाख्त, अपना आर्मी नंबर ज़हनी माजूरी के अय्याम में भी याद रहा। अगस्त 2018 में अज़्म हिम्मत के पैकर सिपाही मकबूल हुसैन को आजाद कश्मीर में उनके आबाई इलाके तराट खल में पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। सिपाही मकबूल हुसैन की मरकत पर लहराता सब्ज़ हिलाली परचम मादरे वतन की मोहब्बत में उनकी बेमिसाल कुर्बानी की गवाही दे रहा है। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और दूसरी आज़ाद पसंद तंजीमों ने भारत और मकबूजा कश्मीर की जेलों में गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद रहनुमाओं और कारकुनों की बिगड़ती हुई सेहत पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक APHC और शबीर अहमद डार, डॉक्टर मसब, मोहम्मद एहसन ओंतो और ने श्रीनगर से अपने बयानात में सेंट्रल जेल श्रीनगर और कुपवाड़ा सब जेल से 20 के नज़रबंदों की वादी से बाहर की जेलों में मुंतकली की मजम्मत की है। उन्होंने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो यासीन मलिक, शबीर अहमद शाह, मुसरत आलम भट्ट, आसिया इंदिराबी और डॉक्टर अब्दुल हमीद फयाज समेत तमाम नज़रबंदों की फौरी रिहाई के लिए किरदार अदा करे। हुर्रियत रहनुमा ख्वाजा फिरदौस, अब्दुल समद इनकलाबी, पीपल्स लीग और पीर पंजाल पीस फाउंडेशन ने अपने बयानात में मकबूजा रियासत में आबादी का तनासुब तब्दील करने के मोदी हुकूमत के घिनौने मंसूबे की मजम्मत की। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि भारतीय फौजी ने रवा माह के दौरान मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों की आड़ में बड़ी तादाद में मकामी नौजवानों को शहीद किया और उनकी मैयतों की बेहुरमती की। लद्दाख के लेह और कारगिल अजला में पीपल्स मूवमेंट और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से दी गई हड़ताल की कॉल की वजह से मामूलात ज़िंदगी महफूज रहे। लेह और कारगिल में समाजी, मजहबी और सियासी तंजीमों का इत्तेहाद 5 अगस्त 2019 के बाद तश्कील दिया गया, जब नरेंद्र मोदी की फाशिस्ट हुकूमत ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करके इलाके को फौजी मुहासरे में ले लिया था। हड़ताल लद्दाख के आइनी हुकूक की बहाली के लिए की गई। भारत में हिंदू इंतहा पसंदों के ग्रुप ने उत्तर प्रदेश में मुसलमान दुकानदार को तशद्दुद का निशाना बनाया और तलगाते हुए इसकी दुकान में तोड़ फोड़ की। रियासत उत्तर प्रदेश के शहर मिथरा में एक दिन के वक्फे के बाद मुसलमान ताजिर की मारपीट का ये दूसरा वाक़या है। कबलोजी इसी इलाके में एक हिंदू जत्थे ने मुसलमान बिरयानी फरोश को तशद्दुद का निशाना बनाया था। मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे खबरनामे में एक ब्रेक के बाद। जिंदगी के रिश्ते एहसास से बनते हैं। इन्हीं रिश्तों की आबियारी के लिए शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद, जहां पाकिस्तान का कामयाब तरीन ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेंटर आपके प्यारों की जिंदगी में उम्मीद और सेहत के लिए पुरअज़्म एक ही छत तले पाकिस्तान की सबसे बड़ी और मुख्तलिफ तिब्बी शोबों के माहिरीन की एक्सपीरियंस टीम लिवर, किडनी, बोन मैरो और कॉर्निया ट्रांसप्लांट को कामयाबी के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक यकीनी बनाती है। मरीज और डोनर्स की मुकम्मल केयर और तहफ़्फ़ुज़। इट्स ऑल हियर इन पाकिस्तान। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद। उम्मीद और जिंदगी के सफर में आपके हमकदम। पाकिस्तान भारतीय वज़ीर दिफा के बेबुनियाद इल्ज़ामात को मुस्तरद करता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा आसिम इफ्तिखार अहमद ने अपने बयान में भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के पाकिस्तान पर दहशत गर्दी से मुतल्लिक इल्ज़ामात को
मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी बरादरी के सामने भारतीय सरपरस्ती में पाकिस्तान के खिलाफ की गई दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत रखे हैं। भारत दहशतगर्दी को बतौर रियासती पॉलिसी इस्तेमाल कर रहा है। सिर्फ रवां साल भारत जौहर टाउन, लाहौर और दासू में चीनी और पाकिस्तानी कारकुनों के खिलाफ दहशतगर्द हमलों में मुलव्वस रहा। तर्जुमान ने अपने बयान में कहा कि बीजेपी और RSS मुस्लिम और अक़लियत मुखालिफ एजेंडे पर काम कर रहे हैं। तर्जुमान ने कहा कि भारत नजरियाती वजूहात और सियासी फायदे हासिल करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करता है। फरवरी 2019 में बालाकोट में भारत की नाम नेहाद सर्जिकल स्ट्राइक के मामले पर भारत बेनकाब हुआ। पाकिस्तान ने खित्ते में स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन बहाल रखते हुए भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है, जबकि भारत का रवैया गैर जिम्मेदाराना है। पाकिस्तान खित्ते में अमन कहा है, लेकिन किसी भी किस्म की भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी से कल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के वक्त ने मुलाकात की और मकबूजा कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि मोदी हुकूमत मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम ढाकर जनूबी एशिया के अमन को नुकसान पहुँचा रही है। मकबूजा कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना दिया गया है। LOC पर कोई घर ऐसा नहीं जो भारतीय फौज की बर्बरियत का शिकार न हुआ हो। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत में दुनिया भर में भारतीय मज़ालिम को बेनकाब करेंगे। NCOC ने मुल्क में कोरोना वबा की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र कोरोना SOPs पर अमल दरामद जारी रखने का फैसला किया है। SOPs का दायरा कार 13 से 27 शहरों तक बढ़ा दिया जाएगा, जिनमें इस्लामाबाद, खानेवाल, मियांवाली, सरगोदा, खुशाब, बहावलपुर, मुल्तान, गुजरांवाला, रावलपिंडी, लाहौर, रहीम यार खान, हैदराबाद, कराची, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, गिलगित, स्कर्दू, पेशावर, सवात, हरीपुर, मानसेहरा, लोहदीर, सवाबी, एबटाबाद, सवात और चित्राल लोयर शामिल हैं। SOPs के मुताबिक तमाम तिजारती सरगर्मियां रात 8 बजे बंद कर दी जाएंगी, जबकि हफ्ते में 2 दिन तमाम मार्केट्स बंद रहेंगी, जिसके लिए दिनों का तयन सूबों की सवाबदीद पर होगा। रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग पर मुकम्मल पाबंदी होगी, जबकि रात 10 बजे तक आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त होगी और टेक अवे की सर्विस 24 घंटे खुली रहेगी। इसके अलावा इंडोर शादियों की तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी होगी, लेकिन 300 मेहमानों के साथ रात 10 बजे तक आउटडोर शादी की तकरीबात की इजाज़त होगी। इसके अलावा मज़ारात पर ज़ायरीन की आमद, सिनेमा घरों पर पाबंदी बरकरार रखी जाएगी। कॉन्टैक्ट खेलों पर भी आयद पाबंदी जारी रहेगी और सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद ही इंडोर जिम जा सकेंगे। सरकारी और निजी दफातर के लिए आम दफ्तरी औकातकार 50% हाजिरी के साथ जारी रहेंगे। मुल्क भर में तालीमी इदारे 50% तादाद के साथ हफ्ते में 3 रोज़ खुले रहेंगे। तफरीही पार्कों और स्विमिंग पूल्स की बंदिश भी बरकरार रहेगी, जबकि अवामी पार्कों में कोरोना प्रोटोकॉल के साथ दाखिले की इजाज़त होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सवारियों की शरह 50%, जबकि रेल सर्विस 70% सवारियों के साथ जारी रहेगी। NCOC अपनी नाफिज करदा SOPs पर 13 सितंबर को नजरसानी करेगा। मुल्क भर में कोरोना वबा की चौथी लहर जारी है। गुज़िश्ता रोज़ मोहलिक वबा से मजीद 69 अफराद जाम बहक हुए। अमवात की मजमूई तादाद 25,589 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में 62,918 अफराद के टेस्ट किए गए, जिनमें से 3,909 मुस्बत रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 6.2% रिकॉर्ड की गई। उधर दुनिया भर में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 21 करोड़ 70 लाख से तजावुज़ कर गई। वबा से हलाक होने वालों की तादाद 45 लाख 12 हज़ार से ज़्यादा हो गई है। कोरोना से अब तक 19 करोड़ 39 लाख अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। भारत की जनूबी रियासत केरला में एक बड़े त्यौहार के बाद कोरोना केसेस में 70% इजाफा हुआ। भारत में एक ही दिन में कोरोना केसेस की तादाद 46,759 हो गई, जो 2 माह में सबसे ज़्यादा हैं। दूसरी जानिब अमेरिका में फ्लोरिडा और टेक्सास में हज़ारों तलबा अपने स्कूल्स में वापस आ गए। कोरोना केसेस बढ़ने की वजह से स्कूल्स में मास्क को लाजमी करार दिया गया। अमरीकी महकमा सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक पिछले 2 हफ्तों में अस्पतालों में दाखिल होने वाले कोरोना के मरीजों में 28% इजाफा हुआ है। सदर ममलिकत की अहलिया बेगम समीना आरिफ अलवी ने तमाम सियासी जमातों पर जोर दिया है कि पाकिस्तान को साफ और सरसब्ज बनाने में अपना किरदार अदा करें। गवर्नर हाउस कराची में शजरकारी से मुतल्लिक इजलास के दौरान गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के सरसब्ज पाकिस्तान के विजन को अमली शक्ल देने के लिए आगे बढ़ें।
बेगम समीना आरिफ अलवी ने कहा कि हम ग्लोबल वार्मिंग के माहौलियाती चैलेंजेस का मौसर तौर पर मुकाबला सरसब्ज पाकिस्तान की यकसा पॉलिसी पर अमल करके ही कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि साफ और आलूदगी से पाक कराची शहर आवाम का हक है। बेगम समीना आरिफ अलवी ने कराची में पार्कों की बहाली की ज़रूरत पर भी जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम ने कहा है कि अमरीका को हवाई अड्डे ना देने का फैसला वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जुर्रतमंदाना इक़दाम था। अटक में जलसे से खिताब करते हुए मलिक अमीन असलम ने कहा कि इमरान खान के इनकार ने पाकिस्तान का वक़ार दुनिया भर में बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कोशिशों से पाकिस्तान सही मानों में आज़ाद, जिंदा और बावकार कौम की हैसियत से कौम आलम के सामने खड़ा हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी जमशेद इकबाल चीमा ने लाहौर में तरक्याती मनसूबे का इफ्तिताह किया है। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हम मुश्किल दौर से निकल आए हैं, करप्शन के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं और जल्द ही महंगाई पर भी काबू पा लिया जाएगा। मुआविन ख़ुसूसी ने कहा कि इस वक्त मुल्क की क़यादत उन लोगों के हाथ में है जिनके बैरून मुल्क कोई जायदाद या कारोबार नहीं। उन्होंने कहा कि अवाम की बहबूद के लिए जितने फलाही मनसूबे मौजूदा दौर में मुतारिफ कराए गए हैं, इनकी पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल ने कहा है कि नैब ने बड़ी मछलियों को कानून के कटहरे में लाने के अलावा मेगा करप्शन मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि नैब को अपने क़याम से अब तक 4,96,460 शिकायत वसूल हुई हैं। इनमें से 4,87,124 शिकायत निपटा दी गई हैं। नैब ने 16,093 शिकायत की जाँच पड़ताल की मंजूरी दी। 15,378 शिकायत की तस्दीक का अमल मुकम्मल किया गया। नैब ने 10,241 इंक्वायरीज़ की मंजूरी दी, जिनमें से 9,275 इंक्वायरीज़ मुकम्मल की गईं। नैब ने 4,654 इन्वेस्टिगेशंस की मंजूरी दी, जिनमें से 4,358 मुकम्मल की गईं। नैब ने इस अरसे के दौरान बिलवास्ता और बिलावास्ता तौर पर 822 अरब रुपए वसूल करके कौमी खजाने में जमा कराए, जो कि रिकॉर्ड कामयाबी है। पंजाब में गुज़श्ता 3 साल में लाइव स्टॉक के शोबे की तरक्की के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात के दूररस्त नताइज आना शुरू हो गए हैं और काश्तकारों की माशी हालत में बेहतरी आ रही है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं लाहौर से मौज़मुद्दीन। ज़राअत और लाइव स्टॉक आपस में लाज़िम मलज़ूम हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पहले दिन से ही लाइव स्टॉक के शोबे को मुल्क की तरक्की के लिए एक अहम जुज़्व करार दिया और इस शोबे को अवलीन तरजीहात में रखा। पंजाब हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म के विजन को आगे बढ़ाते हुए लाइव स्टॉक के शोबे की तरक्की के लिए बाकायदा कानून साजी की और पंजाब एनिमल हेल्थ एक्ट 2019 की मंजूरी और पंजाब लाइव स्टॉक पॉलिसी 2021 तश्कील दी। लाहौर और बहावलपुर में पेट क्लिनिक्स, चोलिस्तान यूनिवर्सिटी बहावलपुर और तोनसा में मॉडल लाइव स्टॉक फार्म कायम किए गए। जानवरों की बेहतर नस्ल अफजाइश के लिए महकमे का डाटा दुरुस्त किया गया, जबकि 5 अरब से जायद की लागत से आला जनियाती सलाहियत के हामिल सीमेन के इस्तेमाल से ब्रीड इंप्रूवमेंट का मनसूबा जारी है। ये चीज़ बहुत इंकरेजिंग है कि शोबा लाइव स्टॉक जो कि पहले कम अहमियत का हामिल होता था, उसको इतना ओन किया प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर साहब ने। पूरे एतमाद से ये कह सकता हूँ कि 2018 के अंदर जो शोबा हमें दिया गया था, हम उस शोबे को 2022 में जब हमारी गवर्नमेंट का टर्म ख़त्म होगा तो यकीनन हम एक बेहतर हर्ड और अपने महकमे की डायरेक्शन को एक बेहतर सिम्त की तरफ कर चुके होंगे। सूबे में मुर्गबानी के फ़रोग के लिए 7 लाख से जायद परिंदे अवाम में तकसीम किए गए और कटरा बचाओ और कटरा फरबा तकसीम के तहत 63 करोड़ से जायद की सब्सिडी दी गई। मौसर निगरानी और बेहतर मशवरों के लिए स्मार्ट एप्लीकेशन, टोल फ्री हेल्पलाइन समेत वेबसाइट का इजरा किया गया। लाइव स्टॉक की बेहतर कारकर्दगी को यकीनी बनाने के लिए सूबे भर में वेटनरी क्लिनिक्स और अस्पतालों के रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है, जबकि मुस्तहकम ब्रीड इंप्रूवमेंट के लिए जीन पोल की बेहतरी भी लाजमी बनाई गई है, जिससे मवेशी पाल अफराद की खुशहाली, मुल्क की मईशत में बेहतरी और दही किसान की तरक्की का दौर शुरू हो गया है। मौज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। ममलकत खुदादात की तरक्की के लिए तहजीब व सकाफत, तारीख़ व रवायात और माहौल से हमआंग तालीमी निसाब की ज़रूरत था, जो न सिर्फ कौमी ज़रूरियात और तरजीहात को पूरा करने की अहलियत रखता हो, बल्कि बैनुल अक़वामी मयारात का मुकाबला भी कर सकता हो। हुकूमत ने हर फ़र्द को मुफीद शहरी बनाने की खातिर तालीम के फ़रोग़ के लिए ठोस इक़दामात किए हैं। देखते हैं कराची से सुहेल जमाली की रिपोर्ट। पाकिस्तान के तमाम स्कूलों में पहली जमात से प्राइमरी तक यकसा तालीमी निसाब के निफाज का फैसला एक ऐसा इनकलाबी कदम है जिससे गुज़िश्ता अदवार में नाइंसाफ़ियों और तबक़ाती तालीमी निज़ाम का ख़ात्मा होगा और अमीर और गरीब के बच्चों के लिए एक ही निसाब दस्तयाब होगा। कौमी निसाब के निफाज के हवाले से वफाकी वज़ारत तालीम सूबों की मशावरत से 6ठी से 12वीं के निसाब को हतमी शक्ल देने के इक़दामात कर रही है। इस मशावरत में माहिरीन तालीम, असातिज़ा और उलमा से भी रहनुमाई ली जा रही है
जबकि दीनी मदारिस के तलबा को भी वज़ाइफ दिए जा रहे हैं। गुज़िश्ता 3 बरस में स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाया गया है। क्लास रूम, पानी, बिजली और दूसरी सहूलतों को यकीनी बनाया गया ताकि बच्चों को बेहतर माहौल में तालीम दी जा सके। हुकूमत के एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलर प्रोग्राम के तहत सालाना 50,000 मुस्तहिक़ तलबा को स्कॉलरशिप्स दी जा रही हैं। इस 4 साला प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए 24 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत भरपूर इकदामात उठा रही हैं। तालीम, सेहत और मुआवज़ात के अलावा आबी क़िल्लत पर काबू पाने के लिए अरबों रुपए की लागत के मंसूबे तकमील के मराहिल में हैं। तफसीलात के लिए कोयटा से सरफराज शेख की रिपोर्ट देखिए। बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए भरपूर इक़दामात उठाए जा रहे हैं। इस ज़मीन में 600 अरब रुपए से ज़ायद पर मुश्तमिल जनूबी बलूचिस्तान पैकेज की तकमील से खित्ते की महरूमियों और दीगर मसाइल के हल में मुआवनत हासिल हो रही है। सी पैक कौमी तरक्की का मंसूबा है। सी पैक के तहत सूबे में तमाम इक़्तिसादी जोन्स पर काम जारी है। जनूबी बलूचिस्तान के 9 अज़ला में 16 नए डैम्स तकमील के मराहिल में हैं, जिससे ज़राअत के शोबे को भरपूर तरक्की मिल रही है। बलूचिस्तान में जारी तरक्याती मंसूबों का 34% कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर मुश्तमिल है। मौजूदा गवर्नमेंट ने फेडरल PSDP से बहुत सारे CPEC के प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कर रही है। नए रोड्स बन रहे हैं, डैम्स बन रहे हैं और बलूचिस्तान के जो दीगर इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हमारे कुछ बॉर्डर मार्केट्स हैं, वो फेडरल गवर्नमेंट ने टेकअप की है। 52 अरब रुपए की खतीर रकम पानी की किल्लत को दूर करने के लिए मुख्तस की गई है, जबकि 6,500 किलोमीटर सड़कों की तामीर का काम मुकम्मल कर लिया गया है। 1,600 अरब रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। वफाकी हुकूमत के ताउन से तालीम और सेहत के शोबे में खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। इन 3 सालों के दौरान नई यूनिवर्सिटियों और मेडिकल कॉलेजेस का क़याम अमल में लाया गया है। एहसास कफ़ालत और इंसाफ सेहत कार्ड के इजरा के जरिए आवाम को भरपूर रिलीफ पहुँचाने की कोशिशें जारी हैं। वफाकी और बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत भरपूर इक़दामात उठा रही है, जिससे बलूचिस्तान में खुशहाली के नए दौर का आगाज़ हो रहा है। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कोयटा। अब आपको लिए चलते हैं खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला सवात, जहाँ खूबसूरत और पुरकशिश सियाहती मकामात की वजह से मशहूर है, लेकिन अभी भी वादिय सवात में बहुत मकामात सयाहों की नज़रों से ओझल हैं। 2 नए दरियाफ्त होने वाले सियाहती मकामात गबीन जब्बा और जारूगो आबशार के बारे में हमारे नुमाइंदे राना इफ्तिखार अहमद की रिपोर्ट देखिए। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कुदरती हुस्न से माला माल किया है। हाल ही में दरियाफ्त होने वाला गबीन जब्बा वादिय स्वात का एक ऐसा ही हसीन मकाम है जो मैंगोरा से तकरीबन 2 घंटे की मुसाफत पर वाक़या है। गबीन जब्बा में खूबसूरत मनाजर, बुलंदो बाला बर्फपोश चोटियाँ, सरसब्दो शदाब वादियाँ, मीठे पानी के चश्मे और वसी मैदान सयाहों की तवज्जो का मरकज़ हैं। यहाँ पर अब एक रोड बन गया है, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि सफाई के साथ साथ यहाँ इन इलाकों की प्रिजर्वेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह ताला की तरफ से चीज़ें हमें नवाजी गई हैं। आप सिर्फ यहाँ पहाड़ों का नज़ारा कर लें तो यहीं से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अल्लाह ताला की ज़ात ने किस कदर हमें कुदरती मनाज़र से नवाजा हुआ है। मैंगोरा से 55 किलोमीटर और तहसील मट्टा से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर खूबसूरत जारूगो बांडा आबशार है। फाजल बांडा से जारूगो आबशार का तकरीबन 30 मिनट मुश्किल पैदल रास्ता है। यहाँ लोग भी फैमिली के साथ आते हैं टूर पे, और साथ साथ में यहाँ पे बहुत सी फैसिलिटीज़ भी हो रही है। तो अगले साल के लिए मेरे ख्याल में यहाँ पे टूरिस्ट की जो नंबर है वो डबल हो जाएंगी। ये आबशार बहुत खूबसूरत है। मैं तो कहूँगा जो भी आए इधर वापस जाने का दिल ही नहीं करता। पाकिस्तान सियाहत के जरिए कसीर ज़र मुबादला कमा सकता है। सियाहती इलाकों पर भरपूर तवज्जो दिए जाने से रोजगार के मौक़ों के साथ मुल्की मईशत पर भी मुस्बत असरात मुरतब होंगे। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़। और मुमताज़ अदबी तंजीम हल्का अरबाब ज़ौक़ रावलपिंडी के ज़रिए एहतमाम असर हासिर के मुमताज़ चौरा और अदीबों के फ़न और शख्सियत के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम्स का एहतमाम किया जा रहा है। हल्के के हफ्तावार इजलास में मारूफ शायर अली मोहम्मद फर्शी की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में उर्दू और पंजाबी ज़ुबान के शायर अंजुम सलीमी के फ़न पर खुसूसी नशिस्त मुनक़िद हुई, जिसका इब्तदाइया कासिम याकूब ने पेश किया। शुरका ने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी के इस दौर में मेयारी अदब का फ़रोग़ बेहद ज़रूरी है।
السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی۔ ناظرین، آپ کو آگاہ کریں کہ اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسلا دھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ پانی گھروں میں داخل ہو گیا ہے۔ نالہ لئی میں پانی کی سطح بلند ہو گئی ہے۔ بالائی پنجاب کے متعدد علاقوں کشمیر، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں بھی گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے راولپنڈی میں شدید بارش کے پیش نظر کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے انتظامیہ، پی ڈی ایم اے اور ریسکیو 1122 سمیت متعلقہ اداروں کو تمام انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، جبکہ کشمیر، خیبر پختونخوا، اسلام آباد، پنجاب، گلگت بلتستان اور شمال مشرقی بلوچستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے۔